Good morning to all the students of class 8. Welcome to all of you in mathematics class. Okay. Today we will start our new chapter cube and cube root. This is chapter 7 in our NCERT book. Okay. And so we will start here. Okay. Once again welcome to all of you. Welcome to all of you in mathematics class for class 8. The chapter is cube and cube root. ठीक है. Okay. Now first of all, cube of a number. The topic is cube of a number. Okay. For a given x, suppose that x is the given number, we define cube of x is equal to multiple of x as a 3 times. Okay. X into x into x denoted by x cube. For example, 2 to the power 3, that is also called 2 cube, equal to 2 into 2 into 2, that is 2 to the 4, 4 to the 8, that is 8. And now 3 cube, 3 to the power 3, and 3 into 3 into 2, that is 3 3 is 9, 3 is 27. So thus we can say that cube of 2 is 8 and cube of 3 is 27. That is 3 times multiplication is called the cube of a number. Okay, but the same number. Now there is a perfect cube. Okay, what is perfect cube? We have to find out what is perfect cube. Okay. Listen and watch carefully. A natural number is said to be a perfect cube if it is the cube of some natural number. Okay, natural number is said to be a perfect cube if it is also the cube of the some natural number. Okay, here is the example. 1 cube, that is 1 into 1 into, that is, it becomes 1. This one is also a natural number, and this result is also a natural number. This 2 cube, that is 2, is also a natural number, and multiplying this 2 by 3 times, 8 is also a natural number. And likewise 4 into 4 into 4, that is 64, is also natural number. Therefore thus 1, 8 and 64 is a perfect cube. Now some solutions with question with solution. Okay, we have to solve some questions with solution. There is a question. First question is from the exercise chapter. Show that 189 is not a perfect cube. We have to show that 189 is not a perfect cube. Here is given 189 is also, by using prime factorization method, we factorize the prime number, and the 3, that is 3 6 are 18 and 3 3 is 9, also 3 2 is 6 and 3 1 is 3, also 3 7 is 21. These outside are the prime numbers, only prime numbers. Okay, so it is called prime factorization. Here factors of 189 is 3 into 3 into 3 into 7. This 3 is also in triples or triplets, but 7 is not in triples or triplets. So this 189 will not be a perfect cube, because this 7 is not a cube number. Okay, this 7 is not 3 times or triplets, so it is not a perfect cube. Now there is we can write, say that here factor of 189, 3 is in triplets but 7 is not a triplets, and so hence therefore 189 is not a perfect cube. Now second question, show that 216 is a perfect cube. We have to find out, and also that 216 is a perfect cube, and find also number whose cube is 216. Which number whose cube is 216? We have to also find this one also. Okay, now solution is here. Resolving by prime factorization 216 is, here is the prime factorization. 2 1 is 2 and 0 is also given. 2 8 is 16, and now 2 5 is 10, 2 4 is 8, and now 2 2 is 4, and this 1 4 14, then 2 7 is 14. Now 3 also 3 9 is 27, and 3 3 is 9. And now prime factorization of 216 is 2 into 2 into 2 and 3 into 3 into 3. Here 2 and 3, the two numbers, the two natural numbers are in triplets, so the given number 216 is also must be a perfect cube. Okay, and so the 216 is a perfect cube. And now we have to find out number whose cube is 216.
Okay, and here is triplets of 2, that is 2 ka power 2 to the power 3 and 3 to the power 3. Also 2 and 3 is inside and outside this power 3, and now 2 3 is 6. Therefore thus 216 is a perfect cube, and 6 is the number whose cube is 216. This is details also all about this क्यूब एंड क्यूब रूट्स. अब मैं एक बार फिर से आपको हिंदी में समझा दूं, ध्यान से इसको देखेंगे, अच्छी तरह से वॉच करेंगे. आप सारे लोग इसको देखेंगे अच्छी तरह से. फिर से मैं इसको बता दूं, आप बिल्कुल पूरी तरह से ईमानदारी से पढ़ाई करेंगे आप सब. इसको देखिए फिर से. क्यूब ऑफ ए नंबर, क्वेश्चन है किसी नंबर का क्यूब किसे कहते हैं हम. फॉर ए गिवन एक्स, कोई नंबर मान लीजिए नेचुरल नंबर एक्स है, फिर डिफाइन उसे हम क्यूब के रूप में कैसे मानेंगे. उसी नंबर को 3 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोट करेंगे. इसको लिख सकते हैं क्या, एक्स का पावर 3, जो भी नंबर दिया उसका पावर 3, क्योंकि ये क्यूब है. क्यूब का मतलब ही होता है 3 टू द पावर 2. स्क्वायर होता है तो 2 लिखते हैं पावर में 2. तो देखिए यहाँ 2 का पावर 3, 2 इंटू 2 इंटू दैट इज 8. 8 आया यहाँ पे. अब कैसे 10 क्यूब ऑफ 2 इज 8. 2 का क्यूब हुआ 8. और इसी तरह से 3 का क्यूब है 3 इंटू 3 इंटू 3 दैट इज 27. 10 क्यूब ऑफ 3 इज 27. 3 का क्यूब 27, अर्थात 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 हमारा आएगा. अब देखिए परफेक्ट क्यूब क्या है. ए नेचुरल नंबर को हम कहते हैं, किसी नेचुरल नंबर को, प्राकृत संख्याओं को हम कहते हैं परफेक्ट क्यूब कहते हैं. इफ़ इट इज़ ए क्यूब ऑफ सम, जो कि वह भी किसी नेचुरल नंबर का क्यूब हो, तभी वह कहलाता है हमारा ये परफेक्ट क्यूब. अब देखिए यहाँ पे 1 का पावर 3, 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा. ये 1 जो है हमारा, ये भी नेचुरल नंबर, और रिजल्ट में आया है 1, ये भी नेचुरल नंबर. उसी तरह से 2 का पावर 3, ये 2 भी हमारा नेचुरल नंबर, और 2 का पावर 3 जब 2 इंटू 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा, ये भी हमारा नेचुरल नंबर. उसी तरह से ये 4 भी नेचुरल नंबर, 64 भी नेचुरल नंबर है. तो हम कह सकते हैं 10, 1, 8 एंड 64 इज ए परफेक्ट क्यूब. परफेक्ट क्यूब है ये. ठीक है. अब एक 2 सॉल्यूशन है, ध्यान से देखें हम लोग. ये पहला सॉल्यूशन कह रहा है शो दैट, हमें दर्शाइए, दिखलाइए कि 189 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब. 189 परफेक्ट क्यूब नहीं है. ये हमें शो करना है, इसे प्रूफ करना है, सिद्ध करना है हमें. तो 189 को देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, इसको प्राइम नंबर से हम लोग इसको फैक्टराइज करेंगे. तो देखिए 3 इंटू 3 इंटू 3 आएगा इंटू 7. ये 3 है वो ट्रिपल्स में, 3 का सेट में है, लेकिन 7 केवल सिंगल है. इस कारण से ये जो गिवन नंबर है 189 वह हमारा ये परफेक्ट क्यूब नहीं कहलाएगा. तो कह सकते हैं यहाँ पे हम लोग 3 इज इन ट्रिपल्स बट 7 इज नॉट इन ट्रिपल्स. और सो इसलिए कह सकते हैं 189 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब. हमारा 189 परफेक्ट क्यूब नहीं होगा. और दूसरा क्वेश्चन और है, सो दैट 216 इज ए परफेक्ट क्यूब. फाइंड द नंबर हुज क्यूब इज 216. कह रहा है कि ये हमें दिखलाना है, दर्शाना है, सिद्ध करना है कि 216 है ये परफेक्ट क्यूब हमारा होगा. और वह किस नंबर का होगा परफेक्ट क्यूब, यह भी हमें पता करना है. ठीक है, किस संख्या का वो परफेक्ट क्यूब होगा वह भी हमें पता करना. देखिए हम लोग रिजॉल्विंग 216 प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 216 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे. देखिए 2 नंबर है, 2 हमारा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है. प्राइम से हम तोड़ते गए हैं तो इस तरह से हमारा लगते गया. ये 108 से लगा, फिर 54 54 से लगा, फिर 27 27 से लगा, फिर 9 से लगा, फिर 3 से लगा. ये बाहर का नंबर सारा है हमारा, सब प्राइम नंबर देखिएगा, प्राइम नंबर से, इसलिए प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है ये. तो देखिए 216 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये सारा बाहर का नंबर सारा का सारा चलाता है. अब देखिए 2 भी हमारा ट्रिपल का सेट में है और 3 भी हमारा ट्रिपल्स का सेट में, मतलब ट्रिपलेट्स है ये, 3 का सेट है ये बना हुआ. इस कारण से हम कह सकते हैं क्या, ये जो नंबर 216 है हमारा परफेक्ट क्यूब कहलाएगा. ठीक है. और लेकिन अब किस नंबर का होगा, तो देखिए ये 2 है, तीनों में से 1 2 ले लेंगे. इसमें से भी ये 3 है, जो ट्रिपल है 3, इसमें से भी 1 ले लेंगे. तो ये 2 इंटू 3, 2 का पावर 3 लिख सकते हैं, 3 का पावर 3, और 2 और 3 को एक कॉमन ब्रैकेट में ले लेंगे, और ये जो दोनों बाहर में जो 3 है वो बाहर ले लेंगे. अब देखिए 2 3 6, 6 का क्यूब हमारा 216 आता है. तो लिख सकते हैं हैंड से, एंड 6 इज द नंबर हुज क्यूब इज 216. 6 एक ऐसा नंबर संख्या है इसका क्यूब जो है घन, जिसको हिंदी में बोलते हैं घन, 216 है. तो ये इस तरह से आप सब बिल्कुल अच्छी तरह से वॉच करेंगे इस वीडियो को, तो आपका क्यूब रूट स्टार्ट हो गया हमारा. और इसे अच्छी तरह से घर में बनाएंगे और इसे दिखलाएंगे मुझे कॉपी में लिख करके. ठीक है. आज भर के लिए आपको ठीक से बेस्ट ऑफ लक आप सबको. ऑल द बेस्ट. स्टे एट होम टू ऑल ऑफ यू.